on every turn. अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो वो इस बार से शुरू से क्लास अटेंड कर सकता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट रिविजन करते हैं हर बार। ये सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वी हैव डिस्कस विद यू द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी? Physiology is a study to explain physical and chemical mechanism responsible for origin, development and progression of life. उसी की एक सब ब्रांच है clinical physiology that is related to the applied aspect of physiology, and or in other words, pathophysiology of diseases. To understand the pathophysiology of diseases, that comes under clinical physiology. Books, I recommend two books: Medical Physiology by Guyton and Hall and Genong Review of Medical Physiology. ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे शुरू के फर्स्ट क्लास के, जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। We have discussed with you the cell. What is a cell? Cell can be defined as the structural and functional unit of life. But what is cell? Cell is a structure bounded by plasma membrane. It contains, there is an internal environment called intercellular environment, and there is an extra environment outside to the plasma membrane is known as extracellular environment. There are many other structures present inside the cell. That is, what are the structures? Endoplasmic reticulum, ribosome, proteasomes, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, centriole, cilia, flagella, and microvilli. These are the actually these are small structures that is present inside the cell which perform different functions. Functions are already listed here. For example, mitochondria, it is powerhouse of cell. Now, what is the function of cell membrane? It is a protective layer. It separates the internal environment from the external environment and regulate transport. The environment, the nature of the environment, intracellular or extracellular, they are both aqueous in nature. Aqueous means water soluble. Okay. Now, other important structures are cytoskeleton. Under cytoskeleton, we have discussed with you microtubules, cilia, flagella, intermediate filaments, microfilaments, and their disorders of cytoskeleton. Commonly seen disorders are, it is commonly seen in Alzheimer's disease, alcoholic liver diseases. Molecular motors, movement or transport inside the cell is performed by the molecular motors. They can be classified into molecular based, microtubule based molecular motor and actin based molecular motors. Conventional kinesin, dynesin, myosin 1 and myosin 2. ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर जो मॉलिक्यूलर मोटर्स हैं रेड रंग से हैं, ये ब्लू रंग का माइक्रोट्यूब्यूल है। तो सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ molecular motor, and this molecular motor is the concept of nanotechnology comes from the nanomotors, molecular motors। यहीं से आया है, सेल से आया है वो कंसेप्ट। अब ये देखिए एंटोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। Another important structure present inside the cell is nucleus. It contains genetic material, DNA, RNA responsible for the cellular functions जो होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं? By information coming from nucleus. मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। देयर इज अ फॉस्फेट एंड देयर इज अ लिपिड एंड। फॉस्फेट एंड फेसेस टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट, लिपिड एंड फेसेस विद ईच अदर। लिपिड बाइलेयर है, हमेशा याद रखिएगा। लिपिड कंपोजिशन देखेंगे, इफ यू सी द कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, 40% लिपिड है, 55% कार्बोहाइड्रेट है, 55% प्रोटीन है, 5% कार्बोहाइड्रेट। आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? वॉल्यूम वॉइस आ रही है? ओके, वेरी गुड। थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पता नहीं चलता है ना। ओके वसीम यार, ये तो थोड़ा माउस भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। मेम्ब्रेन लिपिड्स, 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फेटिडाइल कोलिन, phosphatidyl ethylamine, glycosphingolipid, sphingomyelin and cholesterol. Cholesterol is an important constituent of the membrane. It determines the flexibility of membrane. If more cholesterol is present, membrane becomes less fluid.
fluid we and there is a concept of glycolipid and glycoprotein. They are the attachment carbohydrate moieties attached to the lipid and to the to the proteins. So they are called glycolipid and glycoproteins. They are antigenic in nature. They provide their cell to cell interaction is possible because of the glycolipid and glycoprotein. They are also perform as receptors for many other substances, and they are antigenic in nature. आपको एग्जांपल मालूम ही है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस में जो हम लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग वन वैक्सीन बेस्ड ऑन द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द कोर ऑफ वायरस, है ना। उसको हम लोग कहते हैं किस तरह का है, जो लाइक जो है ना कार्बोहाइड्रेट मोइटीज अटैच टू प्रोटीन और लिपिड, वी टेकन दैट इज प्रेजेंट ऑन द कोर ऑफ द वायरस, और उसको एक्सट्रैक्ट किया है, उसके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं. सो once the antibodies is developed, they can be this this system can be used as वैक्सीनेशन. तो इसको इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बींग्स में, और उससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं. जब वायरस एंटर करता है तो वो उसको किल कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वायरस कंप्लीट वायरस नहीं है, फ्रेगमेंट ऑफ वायरस है. ओके, तो दीज आर मोस्ट पोटेंशियल कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल टू डेवलप वैक्सीन एडजुवेंट्स. ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को दिख रहा है, इस पे हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट विद यू. Functions of plasma membrane: it is semi-permeable, allow fat soluble substances to enter or leave the cell, and aqueous soluble substances enter or leave the cell with the help of carrier proteins. So there are peripheral protein, there are integral protein. Peripheral proteins वही functions we have already discussed with you. Integral protein जो होती हैं वो through and through होती हैं, interrupt the membrane, phospholipid membrane को interrupt करती है. There are 6 type: type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 and type 6, depending upon the carbo in the basically क्या होता है कि number of times it passes through the lipid layer, or the chemical nature of the on the basis of chemical nature they can be classified into 6 different classes. Functions of cell: define cell boundaries, provide shape to the cell, maintain ionic gradient, maintain volume of the cell, transport across cell to cell attachment, enzymatic function, receptors for hormones and messenger, immune function, resting membrane potential, generation of transmission and action, secretory functions. तो ये सारे फंक्शन है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारी दूसरी क्लासेस थी उसमें ये सारे लर्निंग. now you can see the intracellular environment, extracellular environment, and there is a barrier. Red barrier है, plasma membrane है. Because of this, what is the difference? Sodium inside the cell will be low and potassium will be high, and this is the function of sodium potassium pump. It actively transports sodium out of the cell and bring potassium into the cell. अब disorders क्या हो सकते हैं? Cystic fibrosis हो सकती है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हमने बात करी, अल्जाइमर्स हो सकती है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये सारी डिसऑर्डर्स जिनके पैथोफिजियोलॉजी कहाँ पर है? वेयर इज द डिफेक्ट लाइज इन द मेम्ब्रेन or in the phospholipid of the membrane or protein of the membrane. Try to understand that the defect, where is the defect? Until unless you treat the defect, you won't be able to correct the disorder. So defect lies at the level of plasma membrane, either in the phospholipid or in the glycoproteins or in the protein itself. तो cystic fibrosis क्या एग्जाम्पल था? cystic fibrosis में देखिए डिफेक्टिव कैल्शियम चैनल है, और अल्जाइमर्स में क्या है कि फॉस्फोलिपिड का अल्टरेशन हो जा रहा है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या हो रहा है? देयर इज अल्टरेशन इन फॉस्फोलिपिड ऑफ द न्यूरॉन्स. इसको हम ड्रग्स मैनेजमेंट में बहुत सारे यूज कर सकते हैं. कि बहुत ही डिफिकल्ट क्या कहते हैं अल्सर्स होते हैं ट्रीट करना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर गिवन टू द लोकली अप्लाइड टू द पेशेंट where it causes defect in the plasma membrane of the pathogen, and when the defect is there, it causes the multiplication will become difficult and the pathogen dies, and when the pathogen dies, ulcer heals. So these are the two polypeptide polymyxin B or daptomycin. It is very effective against gram-negative bacteria. Other functions at the membrane are phagocytosis, endocytosis, and exocytosis. We have already discussed in great detail cell eating and cell rejection. After phagocytosis, it is the substance is digested by lysosomes. If there is deficient in lysosomes, what will happen? There will be lysosomal disorders. One example is Takesaki disease, where there is mental retardation because of the deficiency in the enzyme of
hexosaminidase A. And what will happen? There will be accumulation of nucleosides in the neurons, and this will result in mental retardation. So lysosomes को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि there are many disorders related to lysosome deficiency of lysosome, and these are genetic abnormalities. Body fluids, internal fluid compartment and external fluid, intracellular, it is called internal fluid environment is called intracellular fluid, and extracellular environment is extracellular fluid. It is further divided into interstitial fluid, plasma, and special category is called transcellular fluid. ये सारे यहाँ पे डिटेल डेटा दे रखा है आप लोगों से, हम लोग डिटेल डिस्कस कर लिया है. Because of the membrane, because of the transportation across the membrane, there will be differences in the level of oxygen, carbon dioxide in intracellular and extracellular. Body systems are regulated by the feedback mechanism. There is a positive feedback mechanism, there is a negative feedback. Negative feedback mechanism is the most important mechanism where it regulates almost all the functions of body. Still, positive feedback is vicious cycle, but there are examples where it also regulates the body functions like clotting, childbirth, and many others. इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है गेन एंड करेक्शन का. गेन करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर, वो हमने आपसे डिटेल में डिस्कस. हीमोस्टेसिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक? टू मेंटेन हीमोस्टेसिस. व्हाट इज हीमोस्टेसिस? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन और कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द इनसाइड द सेल एंड सराउंडिंग ऑफ द सेल, दोनों तरफ मेंटेन करना पड़ता है. अगर ये लॉस हो जाए तो क्या होगा? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इनटू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. Multiple organ failure is the most important phenomena that lead to the most common important phenomena. Why I am saying? Because it is a common cause of death in ICU. अब फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फीवर हुआ, हेल्थ में क्या होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. फीवर हुआ तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन से क्या होगा? टॉक्सिन्स रिलीज होंगे. टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो क्या होगा? द फीवर, देयर विल बी fever. Why there will be fever? Because the toxin will change the normal body temperature towards the higher side, and this will reset the set point for the temperature which is present in the brain. अब क्या करते हैं हम लोग? ड्रग यूज करते हैं पैरासीटामोल, जो उसको रीसेट दोबारा से कर देता है. ओके, तो अगर फीवर होगा तो क्या होगा? बीएमआर बढ़ जाएगा. बीमार बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा. मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा और सेल विल डाई. तो आफ्टर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद क्या होता है? 104 इज हाइपरथर्मिया. उसके बियॉन्ड क्या होगा? Immediately you have to regulate the body temperature towards the normal side. Otherwise, what will happen? There will be hypothermia and patient will die. Of heat stroke is an example. आपने सुना होगा ना, heat stroke में लू लग गई और पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है. ये सब इनकी थ्योरीज हैं. और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्यों होता है, इसकी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं और स्टेजेस हैं. पेशेंट गो इनटू डिफरेंट स्टेजेस. स्टेज 1 में जाएगा तो क्या होगा? ओलिगोरिया, हाइपरग्लाइसीमिया. अब हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को ट्रीट कैसे करते हैं? कॉज को ट्रीट करते हैं, और अगर कॉज नहीं मालूम है तो क्या करते हैं कि हम उसको जो है मैनेज करते हैं. हीमोस्टेटस मैनेज करते हैं, नॉर्मल वैल्यूज की तरफ लाने की कोशिश करते हैं. हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, इंसुलिन देंगे, नॉर्मल यूग्लाइसीमिया करेंगे. ठीक है. हाइपरकलीमिया हो रहा है तो पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन करेंगे इनटेक को. और क्या करेंगे? एसिड ड्रग्स यूज करेंगे जो पोटेशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है. स्टेज 3 में पीएच से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं. कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज होते हैं. पीएच को अगर रेगुलेट करेंगे और कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज हैं तो क्या होगा? कि एंटी कोगुलेंट्स यूज करेंगे. इसी तरीके से अगर फाइनली कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो क्या करते हैं? फ्लूइड यूज करते हैं और जो है आपके वेसोप्रेसर्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं. अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो परफ्यूजन नहीं होगा. परफ्यूजन नहीं होगा तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा. तो वन सिस्टम लीड टू द फेलियर ऑफ अनदर सिस्टम, एंड दिस विल प्रोड्यूस अ कैस्केड दैट रिजल्ट इन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. ये सब आपका सेगमेंटल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया. सिंपल डिफ्यूजन डिस्कस किया. इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सिंपल डिफ्यूजन where there is consumption of no energy, जहां energy is not required, that is called diffusion. Simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion for the lipid soluble substances and facilitated diffusion for aqueous soluble substances like sodium ion, potassium ion.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि हमेशा एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और देयर आर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखिए ऑक्सीजन है ना, ये सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस कर रही है लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबिलिटी की फिर बात करी हम लोगों ने, डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात करी। अब और ये एक इक्वेशन की बात की थी जिसमें कि हमने कहा था किस किस चीजों पे डिफ्यूजन डिपेंडेंट है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट। एंड अंडर डिफरेंट डिजीजेस देयर विल बी abnormalities of pressure, abnormalities of area, abnormalities of distance. So if you put all these equation and these parameter into a equation, this is known as rate of diffusion is directly proportional to concentration difference, to the area, to the solubility, and inversely proportional to the thickness and the molecular weight of sub, substance that is diffusing across the membrane. ओके, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बताया था हमने आप लोगों को। फिर कंपेयर किया फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, लीनियर राइज होगा कंसंट्रेशन के साथ, बट उसमें क्या होगा, प्लेट्यू फेज हो जाती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के कितने तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। GLUT1, GLUT2, 3, 4, 5 है। वाटर्स में किडनी वाटर रीअब्जॉर्प्शन किडनी में कैसे होता है, एक्वापोरेंस के थ्रू होता है। ये एक्वापोरेंस की बात आई। स्पेशल चैनल फॉर सोडियम होते हैं, इसका डायमेंशन कितना था, 0.3 to 0.5 नैनोमीटर। शेप कैसा है, चार्ज होता है जो कि ड्रैग करा लेता है उसको, सोडियम को हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल से निकाल के एब्जॉर्ब करा लेता है। ये गेट एंड these channels are regulated by gate. There are voltage gating, that is potential difference will create opening or closure of gate, or chemical gating, that is chemical substances responsible for opening or closure of the gates. Example is acetylcholine in case of ligand gating. कैसे स्टडी करते हैं, पैच क्लैम्प टेक्निक यूज करते हैं इनको स्टडी करने के लिए। ये फिर से वही बात आ गई। सबसे अच्छा एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। इट पंप्स 3 sodium out of cell and brings 2 potassium into the cell, where it will create concentration gradient as well as ionic gradient because of the loss of one positive ion from the interior of the cell towards the exterior. So it is also known as, the nature of this pump is also known as electrogenic in nature. Okay, primary transport, active transport. Second transport is again classified into counter co-transport and counter transport. ये हमने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन इन सेलुलर शीट डिस्कस किया, और ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन हमने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा वीडियो शो किया था। एंड देयर इज, आई हैव गिवन यू असाइनमेंट। थैंक यू फॉर, मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड वेरी गुड असाइनमेंट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग असाइनमेंट, यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई परेशानी हुई है असाइनमेंट में करने में, नहीं समझ में आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई गिव यू 1 minute टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम हियर, otherwise I will start the apoptosis today. Any students? देखो है या डिस्कनेक्ट हो गया? नहीं, अब स्टूडेंट नहीं बोल रहे ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। हाँ, नहीं समीर, वो बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को असाइनमेंट पढ़ने में या मटेरियल कलेक्ट करने में? एनीवन अपना एक्सपीरियंस बताओ जिन लोगों ने जमा कर लिया, 1 मिनट ओनली, 1 या 2 लोग बताएं। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, पहले तो सब में आप लोग शेयर कर लीजिए गूगल क्लास कोड, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अनदर थिंग, आई एम वेरी हैप्पी आपने जमा किया। कुछ लोगों को मैंने उसको चेक भी करके रिटर्न कर दिया है और क्रेडिट भी कर दिया है, मार्क्स भी मिल गए हैं कुछ लोगों को, बाकी का भी हम चेक कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, ओनली 75 असाइनमेंट आई रिसीव, ओनली 75, रिमेनिंग 75 अभी आने बाकी है। तो जिन लोगों ने जमा कर दिया उन्होंने अपना फीडबैक बताया, और जिन्होंने नहीं किया उनमें से एक जना फीडबैक बताया। बताओ कुछ बोलो यार, ऐसे तो बड़ा डिफिकल्ट। हाँ बताओ। वेरी गुड, बोलो आदनान। सर साइटोस्केलेटन वाला तो मैंने जमा कर दिया था, बट सेकंड पार्ट उसका कैसे जमा करें, अलग से जमा कर दें? नहीं नहीं, अलग से करते रहो, वैसी पे गूगल क्लास पे आप नाम रोल नंबर जरूर डाल देना अपने आप से ना। पता चला आप ही का किसी और ने स्टूडेंट ने जमा कर दिया, उसे बेनिफिट मिल गया, आपकी मेहनत उसको मिल गई, ठीक है ना। सेकंड भी जमा कर दो, ठीक है। और पूछो कोई स्टूडेंट, एनीवन? अदनान और पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो।
देखो टाइम भी शॉर्ट है, हम रिवीजन बहुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का किसी का भी छूट जाता हो सर मल्टी ठीक है, ऑर्गन इसलिए शुरू से फेलियर वाला पढ़ाते हैं हर वो बार थोड़ा समझा। थोड़ा थोड़ा सा। और सर मल्टी ऑर्गन फेलियर वाला समझा दीजिए। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में देखो कुछ नहीं है, आप ये हाँ बताते हैं। देखिए मल्टीपल ऑर्गन में क्या होता है कि आपका जो बॉडी क्या है, इट इज अ सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। अब हीमोस्टेसिस क्या है कि सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोरिलेशन में काम कर रहे हैं। कार्डियक सिस्टम अगर हार्ट नहीं पंप करेगा ब्लड तो क्या होगा, देयर विल बी नो ब्लड फ्लो टू किडनी। व्हेन देयर विल बी नो ब्लड फ्लो टू द किडनी, व्हाट विल हैपन टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, kidney cannot excretory product until unless there is no blood flow. So क्या हो रहा है कि एक organs function in association with other organs. If one organ fail leading to the failure of another organ. ओके अब कार्डियक सिस्टम में हाइपो शॉक में चला गया पेशेंट तो क्या होगा, देयर विल बी किडनी फेलियर, देयर विल बी रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सिंपल सी बात है। देयर विल बी सीएनएस फेलियर, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पेशेंट जो है फौरन जो है वो उसमें चला जाएगा कोमा में, ठीक है, न्यूरो ब्रेन डेथ हो जाएगी। तो वन ऑर्गन लीडिंग टू द फेलियर ऑफ अनदर ऑर्गन, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फेलियर ऑफ मल्टीपल ऑर्गन रिजल्टिंग इन कोमा एंड फाइनली डेथ। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम हीमोस्टेसिस क्यों अचीव करना चाहते हैं, जस्ट टू ओवरकम द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अगर एक ऑर्गन फेल होगा तो वो दूसरे को फेल करेगा, दूसरा फेल होगा तो तीसरे को फेल करेगा। और आईसीयू में यही होता है, gradually there is some misfunctioning of one of the organ leading to the misfunctioning of another organ, leading to whole of the organism go into failure. And finally, when it becomes there is too much deterioration, then what will happen, when the hemostasis is lost, body will cell will die. When cell will die, finally the person will die. तो आपका फंक्शन क्या है आईसीयू में, कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, ट्रीट द कॉज एंड ट्रीट द सिम्टम्स जो आ रहे हैं। अगर टेकेपनिया हो रहा है तो उसको ट्रीट करिए, शॉक हो रहा है तो उसको ट्रीट करिए। ये दोनों चीजें आपको एक साथ चलानी पड़ती हैं, हमेशा याद रखिए कि कॉज अगर मालूम है तो ट्रीट द कॉज, एंड इफ द कॉज इज एंड मेंटेन द वाइटल्स। यहाँ पर क्या आती है, वाइटल्स की बात होती है। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की बात होती है तो व्हेन वी टॉक ऑफ वाइटल्स, व्हाट आर वाइटल्स, वाइटल्स में आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, दीज आर वाइटल्स। एंड किडनी फंक्शंस, ये सब वाइटल्स में आता है। यूरिनरी आउटपुट, ये सब उसमें आता है। ओके, सो व्हेन नेक्स्ट वी आई ट्राई, ये सब स्लाइड आपने इसमें दिखा दी है आप लोगों को, वीडियो भी शेयर कर दिया था। अब एपोप्टोसिस की बात कर लें थोड़ी सी। एपोप्टोसिस में क्या है, इट इज प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल सेल प्रोग्राम सेल डेथ, cell perform its function and dies. How it is different from necrosis? Necrosis is because of the death of cell because of the inflammatory causes, because of the toxins leading to death, with not programmed. प्रोग्राम का मतलब है कि सेल में इस ऑटोमेटिकली साइकिल है कि वो अपना फंक्शन करेगा एंड देन इट विल डाई आउट। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। न्यूरनल कनेक्शंस जो बनते हैं ब्रेन के अंदर, there are good connections, there are bad connections. Bad connections are lost, abnormal connections are lost by the apoptosis. जो wrong connections हो गए वो कैसे डिस्ट्रॉय होंगे, एपोप्टोसिस में। तो एपोप्टोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर सेल्स भी फॉर्म होते रहते हैं, इम्यून्स में बहुत सारे क्लोन डेवलप होते रहते हैं। तो एबनॉर्मल क्लोन, अनरिक्वायर्ड क्लोन विल गो टू द रेग्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एपोप्टोसिस का आप पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल ही है एपोप्टोसिस की वजह से। लाइफ का कंटिन्यूएशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, एवरी डे देयर आर मेटास्टेटिक सेल्स आर डेवलपिंग इनसाइड योर बॉडी। हर सेल मेटास्टेटिक पावर रखता है और गोज इनटू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड मेटास जो है कैंसर। देखिए what is cancer, cancer is what, uncontrolled growth followed by the metastasis। तो सारे सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ फॉलोड बाय मेटास्टेसिस। उसको कौन रेगुलेट करता है, एपोप्टोसिस। जहां एबनॉर्मल सेल हुआ, कैंसर सेल्स डेवलप हुआ, उसको कौन रेगुलेट करेगा, एपोप्टोसिस। अब ये देखिए बहुत सारे एक पाथवे होता है इसमें, एपोप्टोसिस के बहुत सारे पाथवेज हैं, हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। कैस्पेसिस पाथवे है
और इसका हम एक वीडियो शेयर करते हैं आपको, ज्यादा क्लियरिटी से नजर समझ में आएगा आपको, ठीक है। वसीम यार ये वीडियो चलाएंगे ऐसा, पहले स्टॉप शेयरिंग करें ना। हाँ पहले वो स्टॉप कर देंगे, हाँ स्टॉप कर देंगे, फिर उसको शेयर कर देंगे। असल में ये इतना स्लो है ना। 115 लोग हैं। हाँ ठीक है, स्टूडेंट तो सब सिंसियर है भाई हमारे, स्टूडेंट सिंसियरिटी के बता रहा है अटेंडेंस क्लास में। अभियान को पूरा राइट है भागने का, पर नहीं भाग रहे। नो अभी तो स्टॉप कर दो, है ना, शेयर करा दो, यहीं से शेयर हो जाएगा, यहीं से शेयर हो जाएगा ना। नहीं यहाँ से शेयर, वहाँ पे यहाँ से शेयर कीजिए, ये शेयर आया, ये बड़ा कॉम्प्लीट चला दीजिए, चला देना। पूछ लीजिएगा। आ रहा है, आप लोग नजर आ रहा है वीडियो स्टूडेंट? अब देखिए ये हम इसको एपोप्टोसिस को कैसे यूज करा, चला बता दें। अभी रुक जा। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे यूज किया रहा है एपोप्टोसिस को इन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये दो कंपनियां इन्होंने A key driver of malignant transformation, tumor maintenance, and resistance to therapy is the impairment of a critical cellular function, apoptosis, or programmed cell death. ABT199, or GDC0199, is a small molecule designed to selectively bind and inhibit BCL2, a critical regulator of apoptosis. BCL2 is a member of a larger family of structurally related proteins that are either pro-apoptotic or anti-apoptotic. The dynamic balance between anti-apoptotic members such as BCL2 and pro-apoptotic family members can determine whether a cell lives or dies. By binding common structures shared among pro-apoptotic family members, BCL2 inhibits apoptosis. In response to stress, normal cells, as well as certain cancer cells, will upregulate pro-apoptotic family members. In normal cells, this increased expression of pro-apoptotic proteins is sufficient to induce apoptosis. In contrast, malignant cells will often express more BCL2 to keep pro-apoptotic members in check. This prevents cancer cells from eliciting an apoptotic response. Although increased BCL2 expression allows the cancer cell to survive under continual metabolic stress, the reserve of pro-apoptotic family members sequestered by BCL2 can leave those cells vulnerable to cell death. Co-developed by AbbVie and Genentech, 199 is an orally available small molecule designed to selectively bind and inhibit BCL2. Upon binding BCL2, 199 can displace the store of pro-apoptotic proteins in malignant cells. This causes a shift in the dynamic balance between the available BCL2 and pro-apoptotic family members, inducing apoptosis. With BCL2 inhibited by 199, pro-apoptotic proteins are left free to promote pore formation in the mitochondria, signaling a point of no return for the cell. Cytochrome C and other factors are subsequently released from the mitochondria, initiating the caspase activation cascade. The activation of these proteolytic enzymes coordinates the ordered destruction of the cancer cell. AbbVie and Genentech are continuing their research into the selective BCL2 inhibitor ABT199 or GDC0199. तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करिए एपोप्टोसिस की हम कैसे यूज कर सकते हैं। यस वीडियो आप लोगों को समझ में आया? सो एपोप्टोसिस का कौन सा चीज नहीं समझ में आई बताओ? नहीं क्या समझा है? एपोप्टोसिस और वीडियो वाले से कंटेंट बहुत अच्छे समझ में नहीं आए। नहीं कोई बात नहीं, देखो ऐसा है ना, वो बहुत हाई एडवांस चीज है। बेसिकली आपको एपोप्टोसिस समझना है।
I have to show you one thing, that is apoptosis, how it can be used in health and diseases. तो वहाँ उन्होंने जो 2 कंपनीज हैं उन्होंने डेवलप किया है कोई मॉलिक्यूल जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर रहा है। तो जहाँ पर उसको जरूरत है उसको इनहिबिट कर देता है। कैंसर सेल्स में क्या करते हैं कि हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं उन मॉलिक्यूल्स को यूज करके। तो उससे क्या होता है कि कैंसर सेल्स डेथ हो जाती है। तो कहीं पे हम एक्टिवेशन और एपोप्टोसिस कर रहे हैं, कहीं पे इनहिबिशंस कर रहे हैं। ये बेसिक थ्योरी यूज की जा रही है हेल्थ एंड डिजीजेस में। अगर कहीं पे एपोप्टोसिस फास्ट हो रही है तो क्या होगा, तो उसको आप इनहिबिट कर दीजिए, नॉर्मल सेल्स डेथ बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एजिंग में क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एजिंग बहुत रैपिड होती है, तो बहुत सारे केमिकल ड्रग्स यूज किया जा सकती हैं कि उन प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है या स्लो डाउन किया जा सकता है। तो एजिंग विल स्लो डाउन। और कैंसर हो गया है तो उसमें क्या होगा कि एपोप्टोसिस को फास्ट करनी है, तो वो कंपाउंड यूज करते हैं और जो उसको बाइंड कर देता है कैंसर सेल के साथ, उनमें एपोप्टोसिस इनिशिएट हो जाती है। एपोप्टोसिस सिंपल बात यह है कि either you want to enhance apoptosis or you want to decrease the rate of apoptosis. enhance कब करते हैं, कैंसर सेल्स में करते हैं। डिक्रीज कब करते हैं, एजिंग में करते हैं। ये दोनों चीजें हैं। व्हाट इज एपोप्टोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट योर स्टेज। क्या है, apoptosis is what program cell death. When cell perform its function, it automatically programmed to die itself. Simple line. Or how it is different from necrosis? Necrosis is because of the inflammatory reactions, where cell is still in the state of performing its function, but because of the inflammation, because of the trauma, cell dies. ना, डेथ हो गई। अब आपने बर्न कर दिया, व्हाट विल हैपन, स्किन सेल विल डाई। बट नेचुरली क्या है कि नेचुरल देयर इज अ साइकिल ऑफ 14 डेज। आएगी सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे सारे सेल्स एंड शेड ऑफ हो जाएंगे। बट अगर बर्न हो जाए तो बर्न इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्रोटिक स्किन सेल डेथ। एंड नेचुरल में क्या है कि नेचुरल साइकिल अपने आप ही जो डिग्रेड होते चले जाते हैं सेल, वो अपने आप ही शेड ऑफ होते चले जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखिए हमारे पास बिकॉज है ना, बेसिक कंसेप्ट समझना है व्हाट इज एपोप्टोसिस। ना ऑस्मोसिस, अब आपने डिस्कस किया ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ, देयर आर टू थिंग्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, बॉडी के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या है, बताइए बॉडी में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट्स क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट है, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाटर का मूवमेंट इन बॉडी में क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because the cell volume is regulated by the movement of water across the membrane, and this is what we call osmosis. How you measure osmosis? You measure osmosis by not by two mechanism, दो term use करते हैं, osmolality and osmolarity. One gram osmol substance is dissolved in 1 kg of water. This is called osmolarity. और osmolarity में क्या होता है कि 1 gram osmol dissolved in 1 liter of water. Practically we are using osmolarity. देखिए 1 gram osmol substance dissolved in 1 liter of water. Important thing here to be remembered is that here not the size, here the number of molecule is important. अगर glucose है, if you dissolve it, it will not dissociate into water. So what will happen? Glucose remain glucose molecule. 1 gram osmol if you dissolve करेंगे तो क्या करेगा वो, 1 osmol pressure provide करेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, कितने ऑस्मोल प्रेशर प्रोवाइड करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड व्हाट कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इट डिसोशिएट इनटू, किस किस में डिसोशिएट होता है वो, एनीवन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन इंडिपेंडेंटली बिहेव, and they will, when they independently behave, 1 osmol solution disintegrate into 2 osmoles. तो 2 osmol का वो जो है वो प्रेशर प्रोवाइड करेगा। अगर हम ऑस्मोसिस को कैसे स्टॉप करते हैं, अब क्या होगा, अगर सपोज करिए यूट्यूब है, इसमें एक जो है ना यूट्यूब वाला नहीं, नेट वाला, यूट्यूब लेबोरेटरी का है, ग्लास ट्यूब है। वन साइड देयर इज अ प्योर वाटर, देयर इज अ मेम्ब्रेन, एंड अदर साइड देयर इज solution of sodium chloride. What will happen? Water move from higher concentration towards the lower concentration. वो solvent का movement होना है इस तरफ से, तो क्या होगा कि पानी इस तरफ चला जाएगा। There will be rise in the level in the A side. हो जाएगा ना राइज। अगर इस प्रोसेस को हम रोक दें, दैट जो प्रेशर क्रिएट हो गया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। और इसको रोकने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, इक्विवेलेंट प्रेशर चाहिए।
तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड देयर इज अ कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. एक और चीज होती है जो आप लोग घरों में यूज करते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस. अगर हम सॉल्वेंट साइड पे प्रेशर ज्यादा लगा दें तो क्या होगा कि इधर से वाटर किधर चला जाएगा? वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉल्वेंट इधर से सोल्यूशन साइड से टुवर्ड्स द प्योर वाटर साइड. आप लोगों ने घर में एक्वागार्ड देखे सब लोगों ने? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। उसमें क्या कंसेप्ट होता है? यहाँ तो ऑस्मोसिस की बात हो रही है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है. यू अप्लाई प्रेशर ऑन द इम्प्योर साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इम्प्योर साइड टुवर्ड्स द प्योर साइड. और बॉडी के अंदर क्या है? देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी इज अ सोल्यूशन. आप सोडियम क्लोराइड सेल के अंदर सोल्यूशन है ना, तो एक नॉर्मली जो बॉडी के अंदर सोल्यूशन होता है वो कितना होता है? नॉर्मली इट इज इन मिली ऑस्मोल्स. और कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? 300 मिली ऑस्मोल होता है. 300 मिली ऑस्मोल विल प्रोवाइड हाउ मच प्रेशर? 19,300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है. ऑस्मोलैरिटी कितनी है बॉडी की? सोल्यूशन कितना है? 300 मिली ऑस्मोल. इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 5790 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए. देखिए 1 ऑस्मोल कितना प्रेशर प्रोवाइड करता है? एट 37 डिग्री 1 ऑस्मोल सोल्यूशन विल प्रोवाइड हाउ मच प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना प्रोवाइड करेगा? यहाँ लिखा हुआ स्लाइड पे 19,300 मिलीमीटर ऑफ 19,300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इतना करता है. मिली ऑस्मोल कितना करेगा? 1 मिली ऑस्मोल बॉडी सोल्यूशन विल प्रोवाइड 1 मिली ऑस्मोल सोल्यूशन विल प्रोवाइड कितना? हाउ मच प्रेशर? 19.3. और बॉडी की फ्लूइड बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3. तो दिस मल्टीप्लाइड 19.3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस कम्स आउट टू बी द प्रेशर. तो इतना प्रेशर होता है एक्चुअल में 5790. और बॉडी में जो मेजर्ड प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है. क्यों? क्योंकि आयंस आर नॉट फ्रीली अवेलेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको यूज आने वाला है क्लिनिक्स में. क्योंकि यू विल यूज लॉट ऑफ फ्लूइड टू इन्फ्यूज इनटू द पेशेंट. सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज करेंगे, नॉर्मल सेलाइन यूज करेंगे, रिंग नॉर्मल ग्लूकोज डेक्सट्रोज सोल्यूशन यूज करेंगे, रिंगल लैक्टेट यूज करेंगे. यू विल यूज लॉट ऑफ सोल्यूशन where the concept of osmotic pressure, osmolarity and osmol will help you to overcome the difficulties or helping in the management of the patient. नॉर्मली बॉडी में अगर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की एबनॉर्मलिटीज हो जाए नॉर्मली देयर इज नो एडिमा. बट अगर एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो क्या होगा? कि एडिमा डेवलप कर जाता है. देयर आर ये यहाँ पर देखिए कैपिलरी में फोर्सेस होती हैं, कैपिलरी फोर्सेस दैट ट्राई टू मूव फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, बट दे आर रीअब्जॉर्प्टिव फोर्सेस. तो दोनों का बैलेंस रहता है. नॉर्मली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7. So because of this, small amount of fluid enter into the interstitial space from where it goes back into the circulation with the help of the system. There is a normal vessels for blood circulation and there are vessels, there are tubes for reabsorption of fluid. And this system is called, क्या कहते हैं इसको? आपने पढ़ लिया होगा, आप तो एनाटॉमी में थोड़ा बहुत. जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड फिल्टर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली देयर इज नो एडिमा, बट इन क्यों? कि the extra fluid that is filtered it is reabsorbed by which system? यहाँ लिखा हुआ डायग्राम बन के आ रहा है lymphatic channels. और filariasis में क्या होता है? कि these channels are blocked. These channels are blocked. When these channels are blocked, what will happen? There will be accumulation of fluid in the limbs, affected part of the body. कैंसर में भी यही होता है कि lymphatic channels जो है infiltrate हो जाते हैं और वहां पे एडिमा हो जाता है. ओके या वाटर, बॉडी में वाटर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो जनरलाइज एडिमा होता है. अगर एक एग्जांपल हमको बताए प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाए तो एडिमा हो जाता है. क्यों? कि रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस. जो फ्लूइड फिल्टर हुआ इंटरस्टिशियल स्पेस से उसको रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने लगती है. एग्जांपल इज व्हाट? देयर विल बी जनरलाइज्ड एडिमा. And this is commonly seen in case of nephrotic syndrome. समझ रहे हैं आप? बच्चों में एक डिजीज होती है जिसमें बच्चों के अंदर एडिमा हो जाता है.
नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों? कि एल्बुमिन इज लॉस्ट इनटू द यूरिन। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट इज ऑल रिलेटेड टू ऑस्मोटिक, osmosis, osmotic pressure, osmolarity of the body solution, and its pressure, and their normal mechanism. There are safety factors inside the body that prevents the edema. But under pathology, under diseases, what will happen? These mechanisms will be disturbed, leading to accumulation of fluid into the interstitial space. अगर सेल में ज्यादा जमा हो जाएगा तो क्या होगा? सेल विल रप्चर। देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल देखिए 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सिमिलर टू द बॉडी फ्लूइड्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे क्या होगा आरबीसी को? इट विल स्वेल, वाटर विल एंटर इनटू द सेल, एंड व्हेन इट विल एंटर इनटू द सेल आरबीसी इट विल रप्चर। अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख लेंगे, वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल, इट विल श्रिंक। In both the state, cell will die. And when you have to use fluids, infusion, वैसेस में आपने देखा ना कैथर एक IV लाइन लगाते हैं, कुछ सोल्यूशन चला देते हैं, ड्रिप में चलाते हैं, ड्रिप चला देते हैं कहते हैं ना। तो कैसे सोल्यूशन यूज करते हैं? नॉर्मली वी यूज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब है कि उनकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। it must match with the body fluid osmolarity, otherwise there will be either, if you use hypotonic, it will rupture the cell, it will create swelling of the cell and cell will die, और hypertonic solution में क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड्स कैसे मेजर करते हैं? ये देखिए टोटल बॉडी का हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि टोटल बॉडी में कितना फ्लूइड होता है और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल कितना होता है? 42 लीटर्स होता है, और extracellular 14 liters, 28 liter inside the cell. But these compartments are not very rigid. Exchange होता रहता है फ्लूइड का। इंटरस्टिशियल कितना दिखा रहे हैं? 10.5 लीटर और 11 लीटर के करीब होता है ऑलमोस्ट। प्लाज्मा 3 लीटर, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, इट इज 0.5 to 1 लीटर। अब कैसे मेजर करते हैं टोटल बॉडी फ्लूइड्स को? बहुत सारे इंडिकेटर सोल्यूशन, डायल्यूशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं और इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि उसको हम मेजर कर लेते हैं। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इवनली मिक्स करे, रिलेटिवली इजी टू मेजर, है ना। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिस्टेड हियर। नो इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मस्ट बी अनचेंज। उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होना चाहिए। और कौन से किस में क्या यूज करेंगे? टोटल बॉडी फ्लूइड्स के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं टोटल बॉडी वाटर रिकॉर्ड measured by using heavy water. Extracellular fluid, you use this solution, sodium radioisotope of sodium 22, or for extracellular sodium radioisotope. Intracellular, you can calculate it. Plasma by radio-labeled albumin, blood volume by chromium 51. ये सब रेडियो एक्टिव है, इनको इंजेक्ट कर दीजिए और इनका डाइल्यूशन मेजर कर लीजिए बाय dilution principle. You will get approximate values of the different body fluid compartments. ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने वही स्लाइड जो आपको दिखाई ना, प्लाज्मा में क्या वैल्यू है सोडियम की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, इंट्रासेल्युलर क्या है ना। वी यूज मिली इक्विवेलेंट और मिली ऑस्मोल पर लीटर। दीज आर टू इंटरकन्वर्टेबल यूनिट्स एंड वी यूज दिस यूनिट्स। अब बॉडी में रेगुलेट कैसे होती है वाटर रेगुलेशन थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें भी ये सारा डायग्राम दिखाया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा स्लाइड को, समझ में आ जाए। लेकिन हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स को? ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप बॉडी में यही याद रह जाएगी, क्लिनिक्स में आपको दिखाई दे रही है आप लोगों की स्लाइड। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सलाइन, यू यूज लॉट ऑफ सोल्यूशन टू इन्फ्यूज इनटू द बॉडी। नॉर्मल सलाइन, हाफ नॉर्मल सलाइन, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज करेंगे क्लिनिक्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आज की 2 ही स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एपोप्टोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। नॉर्मल सलाइन क्या है, किसका यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, 0.9% क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड 0.9% यूज करते हैं। हाफ सलाइन भी यूज करते हैं, नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी अंडर डिफरेंट सिचुएशन यू यूज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दैट इज अ स्पेशल सिचुएशन। यहाँ लिखा हुआ है रिंगर लैक्टेट यूज, डेक्सट्रोज, नॉर्मल डेक्सट्रोज 5% होता है, कभी कभी डिफरेंट हाफ सलाइन हाफ डेक्सट्रोज भी यूज करते हैं।
ठीक है, अंडर डिफरेंट सिचुएशन यू यूज डिफरेंट strength of this. Normally, normal saline, normal ringer lactate, normal dextrose commonly used है. But depending upon the requirement of the body, depending upon the situation of the body fluids, you use half ringer or double ringer, half saline or double saline. और नॉर्मल क्या यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल डेक्सट्रोज और नॉर्मल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशंस. ओके, आप लोग मुझे इस पे एक शॉर्ट नोट लिख के लाइए. इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, व्हाट इज योर असाइनमेंट? इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पे एक लिख के लाइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ, कितना नहीं. इट इज योर होम असाइनमेंट. व्हाट इज योर होम असाइनमेंट स्टूडेंट? देखिए आगे स्लाइड दिखा देते हैं आप लोगों कैसे असेस करते हैं क्लिनिकली कि हमको क्या यूज करना है. ये तो आपने बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर किए और उसके अकॉर्डिंगली यू विल यूज दिस प्रोटोकॉल टू यूज डिफरेंट सॉल्यूशंस. ये देख रहे हैं ना आपको, ये हैरिसन का है, ये आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट द क्लास. क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई? No, sir, we are here. You are audible. आप लोगों को असाइनमेंट समझ में आ गया आज का? Yes, sir. लेक्चर में कुछ कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? बॉडी फ्लूइड्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? Because you will be using lot of intravenous fluid and you will be using to treat different disorder, जो बॉडी फ्लूइड्स के डिस्टर्बेंसेस हैं उसको रेगुलेट करेंगे. कोई आंसर करिए, देखिए हमें पता नहीं चलता है ना, आप सामने बैठे हो तो समझ में आता है, पर यू शुड रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज ऑफ टीचर. वो हाथ थम्स अप बहुत आप लोगों ने कर लिया, आप कुछ इंटरेक्ट करिए, थोड़ा 1 आध मिनट इंटरेक्ट करिए. यस एनीवन हु विल? Yes. यस, कुछ बताइए, समरी बताइए. Sir, हाँ in पूछिए. GDC, it is written that transcellular fluid constitute about 12 liters. वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है? Sorry, sir, in Guyton and Hall, कितना लिखा हुआ है? 12 liters. कौन से पेज पे? मुझे फॉरवर्ड कर दिए. 12 लीटर तो होगा ही नहीं. ट्रांससेलुलर फ्लूइड अगर आप मेजर करेंगे तो 12 लीटर तो हो ही नहीं Page सकता. इट number इज रॉन्गली. 48. नहीं, एडिशन बताइए, एडिशन. South Asian 3rd edition. मुझे प्लीज उसका ना स्क्रीनशॉट मेल कर दो, स्क्रीनशॉट मेल कर दो. 1.2 होना चाहिए. 1.2 तक तो प्लीज ज्यादा होता है, ठीक है ना. आप रॉन्ग से देखो, इट इज रॉन्ग, मिस प्रिंट. बट प्लीज मेल मी द स्क्रीनशॉट. आई विल रिकमेंड द करेक्शन टू गाइटन एंड हॉल. ये साउथ ईस्ट एशियन में बड़े एरर्स आ रहे हैं. ओके ना. आप पुराना एडिशन देखो, कोई पुराना एडिशन देखो, उसमें क्या दिया हुआ है उससे कंपेयर करके बताओ मुझे. पुराना एडिशन, इंटरनेशनल एडिशन देखो, उससे बताओ और उसका स्क्रीनशॉट दे दो तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा. ठीक है. आज का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? Yes. ओके, थैंक यू. इफ यू हैव एनी डिफिकल्ट, देखिए हम पूरी क्लास अगली बार फिर आएंगे और फिर पूरी क्लास जल्दी से रिवाइज करेंगे. जिसका भी छूट जाएगा उसका जब तक ऑनलाइन चलेगी रिवीजन भी 15-20 मिनट तो हमारे रिवीजन में ही चाहेंगे, ताकि किसी का भी कुछ छूट जाए, कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछ सकता है. I am here to help you because I am getting this signal from student side that the lectures, because of the poor connectivity, कुछ स्टूडेंट का कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जा रहा है. तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम आधा घंटा तो रिवाइज कराएंगे आपको. ओके ओके, Thank you, sir. थैंक यू. बिल्कुल परेशान ना हो. एटलीस्ट फेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट तो हम 100% करा के जाएंगे आपको. जब आप आएंगे हमारी क्लास में आखिर में तो यही कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ सीखा जरूर. थैंक यू सर. पीपीटी अपलोड कर देंगे आज हम गूगल क्लास पे, शेयर कर लीजिएगा सब लोग. यू विल गेट दिस लेक्चर ऑन गूगल क्लास. हमारी जो क्लास है उस पर मिल जाएगा आप लोगों को. इंट्रावीनस पे एक शॉर्ट नोट लिख के लाओ. थैंक यू.